So, good evening, all of you. Welcome to this YouTube live session. I'm Dr. Ankit, your anatomy educator on Unacademy PG platform, medical PG platform. The topic today is our MCQ revision session, anatomy, for the FMGE Jan 2023 aspirants, which we have decided that will conduct today at 4 p.m. So, yes, we are over here and let's get started. Just a second. So, again, welcome all of you. Just a second. Just say hi, hello if everything is audible and visible. Okay, I hope it is. Just a second. So, I hope audio video is fine. Chalo, let's start the session then. Any queries, let me know in this chat box so we can sort it out. So, here we are and let's now start the session. So, शुरू करते हैं for our FMG aspirants. These are some anatomy important MCQs. It's a session which is going to be up for around 1 hour or so, and we'll be discussing around at least 15-20 important topics and important MCQs for our FMGE Jan exam. Okay, so let's start. I'm Dr. Ankit Khandelwal, anatomy educator. Few updates before we proceed. These are few of the Unacademy updates. Unacademy has started with the NEET PG vitals. For the NEET PG, recorded videos are there. Recorded videos are there now for all the subjects. Few subjects may be in the pipeline, but most of the subjects, the recorded video have been launched. So go through it, and a special launch price also is there, so we benefited. Rankers batch has started on January 10th by these few of the important, very qualified and very experienced educators. So you can look at this batch as well. Unacademy notes you can also get. It is valid till January 16. The new price package with all the important discounts. Code you can use, if you want to use, you can use Dr. Ankit 10 as well for additional discounts. Dr. Dr. Ankit ANKIT 10 numeric 10, right? Lastly, marathon started. This is going to start on 20th of Jan. It's going to be around a month or so for NEET PG aspirants. So this is for NEET PG aspirants. If you are for FMG, okay, this is just so you can share with your friends as well. All India mock test is going to happen on 22nd of Jan. Again on Sunday morning 9 a.m. right? So let's start some of the MCQs. Okay. Anatomy MCQs, high yield MCQs. Let's get started. शुरू करते हैं. चलिए पहला ये answers you can write in the comment box as ABCD. We'll just wait for a few seconds and then we'll have a small discussion. Small discussion. Question goes: while performing a knee examination, a physician pulls the flexed knee towards his body. ठीक है? This clinical test is a check for the integrity of which of the following ligaments. So here we are dealing with the topic क्या है? Knee joint and the ligaments and their basic testing. ये topic है. So is the physician testing tibial collateral, fibular collateral, anterior cruciate or posterior cruciate? A, B, C, D 4 options हैं. These are 4 options and go ahead. Not a very difficult question, I suppose. फिर भी let's see. It's given a special name as well. इसका एक नाम भी है इस test का. I hope you guys remember. Orthopedics में ही पढ़ते हैं. Anatomy also we go through it a bit. Yes, anyone with the answers? A, B, C, D. Hello everyone. चलो, we have started to getting some responses. So options आना शुरू हो गए हैं. Initial जो answers they are going towards option number C. Anterior cruciate ligament. Yes, answer is anterior cruciate ligament. It is the anterior cruciate ligament over here. Anterior drawer test. The test जो यहाँ पे दिखाया गया है, which they are trying to convey to you, is actually the anterior drawer test. Anterior drawer. So ये एक drawer है. If suppose this is a drawer and a handle, and if you're pulling the drawer, right? You're pulling the drawer. A drawer is representing over here as the form of leg. अगर आप leg को pull कर रहे हो अपनी तरफ, it is a opening of the drawer, anterior drawer test. Opposite of it, इसको अगर उल्टा करना है, then that is known as posterior drawer test. In that you check the posterior cruciate ligament. इस question का आंसर तो बना option number C. थोड़ी डिटेल्स और देखते हैं. लेट अस सी कपल ऑफ मोर डिटेल्स. सपोज दिस इज एंटीरियर है बेटा, ये पोस्टीरियर है, ये ऊपर वाली बोन है. वी ऑल नो दैट इज FE डॉट फीमर. बिलो द मेजर बोन इज द T फॉर टिबिया. ठीक है. नाउ लिगामेंट अटैच्ड एंटीरियर टू टिबिया गोइंग बिहाइंड, ये हो गया एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. दिस इज द एंटीरियर क्रूशिएट. आई एम राइटिंग ओवर ACL. लिगामेंट अटैच्ड पोस्टीरियर ऑन द टिबिया, आगे जा रहा है, इट इज द PCL. राइट. Now in the question, the physician was pulling the flexed knee towards the physician's body. इसका मतलब, if the ACL is injured, then obviously there will be extra mobility of the leg.
towards the physician's body. उसमें we are checking the ACL. And there are other tests also. इसको जब आप करोगे when the knee mobility is intact, when the patient can flex the knee by 90 degrees, if the patient cannot flex the knee by 90 degrees, उसके अलग test है. It is in orthopedics. Opposite of it, if you are pushing the leg, you are testing the PCL. Posterior cruciate ligament, this is posterior draw test हो जाएगा PDT. This is anterior draw test ADT. I hope the point is clear. आंसर इसका सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी, एंटी क्रूशिएट लिगामेंट. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. राइट, इंजरी टू बल्बर यूरेथ्रा leads to extravasation. It is a PYQ, previous year question. Leads to extravasation of urine in all except, ध्यान दिया करो एग्जाम में, don't forget the word except. बल्बर यूरेथ्रा की इंजरी है, then urine will be extravasated in all the 4 places except one place. वो कौन सी प्लेस है? Is it superficial perineal pouch, scrotum, anti-abdominal wall or the thigh? कहाँ पर यूरिन नहीं जाएगी? Where it won't go? A, B, C, D. PYQ है, this should be at your tips if you are preparing for the exam. होना चाहिए टिप पे ये. It is a combined question of anatomy ले लो, surgery ले लो. Okay. Thigh, very good. Someone is going with option number C also. अच्छा, never. Answer is thigh, option number D. That is answer. यहाँ पर urine will not be extravasated. Reason अभी सुन लो, single word. Thigh, the urine will not be extravasated into this area because of anatomical structure, not a structure but anatomical fusion of the fascias. उसको बोलते हैं Holden's line. That is known as Holden's line. Which fascias are fused over here? It is the scarpa's fascia from the abdomen, and that is fused with the fascia lata of the thigh. And it is present where? It is present at the level of inguinal region. यहाँ पे inguinal region होता है, groin region. At that level, the scarpas is fused to the fascia lata. Therefore, the urine which is extravasating in the perineum, the perineal pouch, in bulbar urethra, it is present where? In the perineal pouch, superficial perineal pouch. It won't be there, it won't go to the thigh. अगर thigh option नहीं है, remember, in the exam if thigh is not the option, then what are you going to mark? Thigh, and at one other place the urine will not go, and what is that place? Other place is the posterior anal triangle of the perineum. Perineum में we have an anterior area and a posterior area. पीछे यहाँ पर ही where the anal canal opens, we have an area known as ischioanal fossa, ischiorectal fossa. So urine will not go into the thigh as well as it won't go into the ischiorectal fossa. It is also known as ischioanal fossa. कुछ ही बोल सकते हो इसको, ischiorectal और ischioanal fossa. ठीक है? It will go to superficial perineal pouch because bulbar urethra is present in the superficial perineal pouch. Common sense है भाई. This pouch is continuous into the scrotum, तो वहां भी जाएगा. And this pouch is deep to the Colles fascia. ध्यान से समझो, little bit of anatomy, just few seconds of anatomy over here, core anatomy. This pouch is present deep to कौन सा fascia? Colles fascia. I hope some of you may have heard इसका नाम तो सुना ही होगा. This Colles fascia is nothing but इसी का continuation है. It is a continuation of scarpas. So when the pouch is deep to the Colles fascia, if the urine is collecting in the pouch, urine is collecting deep to Colles fascia. So urine will obviously go deep to the scarpas as well. But यहाँ पर you come to the anti-abdominal wall. Anti-abdominal wall जो है, scarpas is a part of it. ठीक है? So when the urine is deep to Colles, it is obviously deep to the scarpas as well. तो वहाँ पे जाएगी. But thigh और ischiorectal fossa में urine will not go. Remember ये question याद रखिए, important question. Any doubts? Let me know. Else we move to the another question. ठीक है? हाँ, deep pouch में भी नहीं जाएगा. Someone said deep pouch. Let me see around कुमारिया. हाँ, deep pouch में भी नहीं जाएगा. If it is only the bulbar urethra, it won't penetrate the perineal membrane to go to deep pouch as well. वो option था नहीं. ठीक है? But ये ischiorectal fossa याद रखिए. It is a commonly asked question. Let us see another question over here. I'll read out the question. The axillary artery old question है, PYQ है and repeated है. Axillary artery has become progressively occluded deep to the pectoralis minor muscle. Which pair of blood vessels would most likely provide a significant collateral circulation around the blockage? Axillary artery block हो गई deep to P minor. अब axillary artery is continuing as a brachial artery. अब ये block हो गई. Which arteries will form a collateral? कि हाथ काम करता रहे, the hand should not, fingers should not go into necrosis, उंगलियां खाली ना पड़ जाएं.
the whole upper limb is dead, ऐसा ना हो. So which vessels provide collateral circulation? That is the question. Options आपके सामने हैं. Posterior anterior circumflex humeral artery, subscapular and posterior circumflex, subscapular and suprascapular, lateral thoracic and supreme thoracic. It is a PYQ and a repeated. ये सब एग्जाम से पूछा जा चुका है. It has been asked in INICT, AIMS obviously, NEET PG, FMGE as well. The question is in front of you. देख हमें क्या आंसर्स आ रहे हैं. A's and B's आ रहे हैं. चलिए. So good question. अब now चलिए देखो सा एक्सप्लेनेशन समझो. Try to understand. Axillary artery is in the axilla. Simple logic है. यहाँ पर we have a P minor muscle which actually divides the axillary artery into first part, second part, third part. Parts की बात नहीं हो रही है, but we should know कि P minor divides axillary artery into 3 parts. अब axillary artery is blocked deep to P minor, मतलब at the middle of the axillary artery. So now there are few vessels which should be proximal to the blockage and distal to the blockage. उन्हीं में तो collateral चाहिए. If it is blocked over here, then there should be few vessels distal, उसकी branches आनी चाहिए, and few vessels proximal, उसकी branches आनी चाहिए. They should anastomose collaterals, and that should supply the upper limb. Proximal to axillary artery is the subclavian artery. यहाँ पर है below the clavicle. ठीक है, subclavian artery. So subclavian artery gives off some branches, and axillary का जो terminal part है, the third part, it gives some branches. They go around a bone known as scapula. Scapula के around जाते हैं. So topic यहाँ पे क्या है? Topic is anastomosis around कौन सी bone? Scapula. So which vessels? उसमें कुछ vessels आएंगी subclavian artery की, उसकी नाम है suprascapular, is a branch of subclavian artery, and subscapular artery is a branch of third part axillary artery. ये याद रखो. They both anastomose around scapula to provide collateral circulation. ये होता है. Let me try to show you also over here. अगर हम इमेज देखें पीछे से, suppose this is a midline, the midline है. This is imagine the scapula from behind. ठीक है. यहाँ पर somewhere over you have the subclavian artery. Let me make some dots. ये जा रही है हमारी axillary artery and becomes brachial artery. ठीक है. ये आगे this is on the empty aspect axillary artery. नीचे आ गई हमारी brachial artery. Blockage is occurring somewhere over here. आगे P minor, deep to P minor. We are looking at a posterior view. आप देख रहे हो posterior view से. What happens is subclavian की कुछ branches आएंगी. They will ramify around the scapula. Axillary artery की third branch की branches आएंगी. They will ramify around the scapula. A blood is not able to go in this path because यहाँ पे blockage है. B for blockage. Therefore blood from subclavian ऐसे आएगा. It will ramify, it will innervate, it will supply a whole scapula. और यहाँ से collaterals from the third part axillary artery, they will take off blood ऐसे घूमता हुआ, it will go into the upper limb. तो यहाँ की गलती से upper limb should not suffer. Simple ऐसा. अगर आप if you look at any patient of this axillary artery blockage, if you just put your hand on the scapula, अगर हाथ रखो, palpate करो, because scapula is subcutaneous zone, we all can feel the scapula. No? Most of the scapula is, you can feel it. You can feel the pulsation of the artery because arterial supplies tremendously increase suddenly. क्योंकि वहाँ पे blockage है, so collaterals have started on the scapula. So it is known as pulsating scapula. You can even palpate the vessels over the scapula. So pulsating scapula, that can also be a question. Pulsating scapula is seen when there is a axillary artery blockage and there are collaterals opened up on the scapula. So यहाँ से आ रही है subclavian से branches जो आएंगी, that is mainly suprascapular artery that we have seen in the option. और इसमें से एक और आ सकती है, that can be an option, dorsal scapular. ये भी option. So these are branches coming from subclavian. Axillary की जो third part है, यहाँ से जो branches आएंगे, the branches will come from the third part of axillary artery. That will be जो हमारा क्वेश्चन था subscapular artery, और इसकी एक branch होती है known as circumflex scapular artery. Circumflex scapular artery. ठीक है. तो ये तीन चार नाम आपको याद रखने. That will go around the answer. ये देखिए क्वेश्चन था ये. This is the branch of axillary, third part. ये subclavian की branch. Any doubts? Let me know. कोई प्रॉब्लम कुछ समझ में ना आए बताओ. As this is a frequently asked question, this should be clear. बाकी ऑप्शंस देख लो. These both are branches of axillary artery. It doesn't make sense. यहाँ पर again these both are branches of axillary artery. These are branches of first and second part of axillary artery. एक हमें subclavian की चाहिए, एक axillary की चाहिए, third part of axillary की. ठीक है. So remember in this question, anastomosis around scapula, these four names: suprascapular, dorsoscapular, subscapular, and उसकी branch is circumflex scapula. Let us move to the next question. Right? चलो आगे बढ़ते हैं. Thoracic duct, thoracic duct. Topic आ गया thorax पे. Thoracic duct terminates into the left brachiocephalic vein at the junction of
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। एक्शन जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन, इंटर्न जुगुलर एंड सबक्लेवियन वेन, एक्शन जुगुलर ब्रेकियोसेफेलिक, इंटर्न जुगुलर एंड ब्रेकियोसेफेलिक। बताइए कहां पर, बिकॉज इट्स, देखो मेडिकल में एनाटॉमी में इट इज ऑल अबाउट मोस्ट कॉमनली, ऐसा नहीं होता सब में वहीं की वहीं टर्मिनेट करेगी, बट मोस्ट कॉमनली व्हाट वी स्टडी इन आवर बुक्स, वेयर डज द thoracic duct टर्मिनेट। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्राई टू गिव आंसर्स। बीज एंड डीज, क्या है बी और डी? अच्छा, मोस्ट कॉमनली इट विल टर्मिनेट वेयर। इतना तो ये द क्वेश्चन इज इटसेल्फ सेइंग कि thoracic duct terminates into the left brachiocephalic vein, इतना तो इसने ऑलरेडी बता दिया। अब नाम देखो, ब्रेकिया मतलब व्हाट इज अ ब्रेकियो वर्ड, मतलब ब्रेकियल प्लेक्सस, ब्रेकियम मतलब आर्म, आर्म हो गया, मतलब अपर लिम्ब। सेफेलिक मतलब हेड एंड नेक, सेफेलिक मींस ऊपर वाला पार्ट, हेड एंड नेक। कॉमन सेंस लगाओ, दिस ब्रेकियोसेफेलिक वेन is a meeting point of vein coming from the upper limb and vein coming from the head and neck. सोचते रहो, क्लियर? नाउ वेन कमिंग फ्रॉम हेड एंड नेक, जो मेजर वेन कौन सी है? इट इज द इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये एक तो ये हो गई। वेन कमिंग फ्रॉम अपर लिम्ब कौन सी है? एक्सिलरी वेन। वो क्या बनेगी? व्हाट विल इट फॉर्म? सबक्लेवियन वेन। तो अनदर वेन है सबक्लेवियन वेन। So these two veins they actually form the brachiocephalic vein. जैसे कि जस्ट इमेजिन दिस इज द इंटरनल जुगुलर वेन लेफ्ट साइड की, और ये लेफ्ट से आ रही है सबक्लेवियन वेन। दे बोथ विल मीट एंड दे बोथ विल फॉर्म, ये ऑब्लिक जा रही है द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। इट इज क्रॉसिंग द मिड लाइन टू फॉर्म द सुपीरियर वेना केवा एंड मीट विद द राइट ब्रेकियोसेफेलिक। लेट मी लेबल, लेफ्ट इंटरनल जुगुलर, लेफ्ट सबक्लेवियन, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक क्रॉसेस द मिड लाइन, मीट्स विद द राइट ब्रेकियोसेफेलिक, क्या बनाएगी? सुपीरियर वेना केवा। thoracic duct कहां आ रही है? राइट एट द जंक्शन, ये यहां पर, राइट एट द जंक्शन ऑफ आईजेवी सबक्लेवियन वेयर द लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन स्टार्ट्स। मोस्ट कॉमनली, ऐसा नहीं कि हर पेशेंट में आप खोलो नहीं सर इसमें तो यहां नहीं मिला, इसमें तो हमें 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर यहां मिला, वेरिएशंस, उसकी चिंता मत करो एट दिस लेवल। रिमेंबर thoracic duct opens at the beginning or the starting point of left brachiocephalic, which is the meeting point of left internal jugular and left subclavian। खत्म हो गया आपका डाउट, खत्म, क्वेश्चन का आंसर आ गया सामने। Am I clear? आंसर इसका ऑप्शन में बी है। आई गेस मोस्ट ऑफ यू वेंट विद, हाँ चलो बी में काफी लोग गए। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन ओवर हियर। एंड यू शुड आल्सो नो thoracic duct drains which structures which it and which is areas of the body are not drained. So remember over here, before we proceed to the another question, whole of the body is drained by thoracic duct, EXCEPT, except क्या? Except right half of head and neck, right half of thorax and right upper limb. Thorax बोल रहा हूँ, abdomen नहीं, right half of thorax, right upper limb, right half of head and neck। ये वाला एरिया ड्रेन होता है right thoracic duct से। This area is drained into right thoracic duct। वो कहाँ ड्रेन करेगी? अगेन जैसे लेफ्ट it was draining to the beginning of left brachiocephalic, right thoracic duct will drain into the beginning of right brachiocephalic। काम खत्म। तो what areas are drained by thoracic duct? Left half of head neck, left thorax, left upper limb and everything below diaphragm। पूरा abdomen, pelvis, back region, lower limb, foot, everything। diaphragm नीचे सब कुछ is drained by thoracic duct। Clear? Now we can go to the next question। Let's see a image over here। histological question है, बताइए क्या है ये। The type of structure shown in the following slide is found in। पहले पहचानना ये है क्या, फिर ये मिलता कहां है। ओके ये क्या है, मिलता कहां है, क्यों, कौन से मार्केट जाएंगे लेने के लिए, और ये है क्या, पहचानिए। Is it found in intervertebral disc? Is it found in the articular cartilage? Is it in the articular disc या पिन्ना? ABCD 4 ऑप्शंस। जस्ट अ सेकेंड, बताइए। Okay, अमन एंड अशफाक, वेरी गुड। पहली चीज ये है क्या? इट इज अपियरिंग सम कार्टिलेज, कुछ कॉन्ड्रोसाइट्स दिख रहे हैं। वी आर सीइंग सम कॉन्ड्रोसाइट्स, बट द मैट्रिक्स एकदम क्लीन है, कांच के ग्लास की तरह। इट इज हाईलाइन, हाईलाइन मींस ग्लास लाइक, ये हाईलाइन कार्टिलेज। तो आपका 80% आंसर खत्म, हाईलाइन है बट हाईलाइन ऑप्शन नहीं है। हाईलाइन कार्टिलेज इज सीन वेयर, इट इज द मोस्ट कॉमन कार्टिलेज फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, देयर आर 3 मेन कार्टिलेजेस, हाईलाइन, इलास्टिक एंड फाइब्रो कार्टिलेज। इलास्टिक तो इलास्टिक का है, पिन्ना हो गया, यूस्टेशन ट्यूब हो गया, एपिग्लॉटिस है, these are elastic cartilage. Fibro are the tough ones,
इंटरवर्टेबल डिस्क है, आर्टिकुलर डिस्क है, दोज आर फाइब्रोकार्टिलेज. हाइलाइन जो है, लाइक इन द लैरिंग्स मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज हाइलाइन. हाइलाइन आर सीन एट द एंड ऑफ द बोन्स, दे आर नोन एज आर्टिकुलर कार्टिलेज. आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है? देखो ये मान लो एक बोन है, ऊपर से आ रही है एक बोन, ये बोन नीचे से आ रही है, ठीक है. दे बोथ आर मीटिंग, दे आर फॉर्मिंग अ जॉइंट. मान लो कोई साइनोवियल जॉइंट बना दिया, कैप्सूल है. At the end of the bones, which are the articulating surfaces, they are covered by cartilage. ये होता है articular cartilage. This is the articular cartilage, which will actually be very close to each other, है ना, separated by the synovial fluid or in some cases by the articular disc. अगर इनके बीच में disc आ गई फाइब्रो का, तो ये फाइब्रो कार्टिलेज. This is, and the joint becomes a complex variety. जैसे for example, name any joints which have articular disc in between. बताओ ऐसी. Which those will automatically be the examples of complex type of synovial joints. जिन joints बीच में articular disc, उनके नाम क्या हैं? Examples ले लो. TMJ, knee joint, sternoclavicular joint, common examples हैं, right? और भी आपका below the ulna, but वो joint नहीं बनता है, ulnocarpal बनता नहीं है, but that is separate from the wrist, but वहाँ भी articular disc है. So these are common ones. So this is the articular cartilage which is present in all the synovial joints. ये characteristic है इसकी. वो हाइलाइन का बना होता है. Therefore this is the answer. Intervertebral disc fibro, articular disc fibro, pinna E for elastic cartilage. खत्म. Articular disc H for hyaline. Clear? हाँ, knee very good. Sorry, very good. चलो, ठीक है, इतनी बात क्लियर. सो हाँ, एक चीज और, questions from the histology of cartilage have come quite frequently. बहुत questions आए. अगर आपको ऐसी इमेज मिले, if you get this sort of image, but in between you also get some cartilages, कुछ fibers मिलेंगे, go for elastic cartilage. Similar sort of image, but the matrix is not glassy clean, it has fibers, elastic cartilage पे जाओ. अगर आपको एक और इमेज मिलती है where this sort of arrangement of chondrocytes and lacunae is not there, but एक row of chondrocyte आपको मिले, ऐसे cells आपको मिले, go for fibrocartilage. ठीक है, row of chondrocytes, fibrocartilage. एकदम group of chondrocytes without any fiber, hyaline. Group of chondrocytes with fibers, elastic cartilage. एकदम basic rule रखो, एक दो salient features पर ध्यान में रखिए एग्जाम में, that is needed. उससे ज्यादा needed है नहीं. You are not giving a PG exam, simple इतना काफी है. ठीक, so let's see and the question over here. हाँ जी, what are the famous questions of FMGE exams? Killian's license, head and neck, pharynx. Topic बता रहा हूँ. This you have to go through pharynx. Killian's license, which you study again in surgery when you look for the diverticulum. So it's license, there is a diverticulum, Zenker's diverticulum. Then you look at its management, surgical procedure, all of that. Clinical presentation, but ये anatomically कहाँ है? ABCD. Killian's license present where? Between crico and thyropharyngeus, middle inferior, stylo and salpingo, or salpingo and palatopharyngeus. Repeated है question. I hope all of you should answer. Actually mind में तो answer होना चाहिए. What is the answer? Killian's license is present in the inferior constrictor between crico and thyropharyngeus. Answer बन गया option number A. Inferior constrictor is made up of two muscles. One coming from the thyroid cartilage, it is slightly oblique. One coming from the cricoid cartilage, it is slightly horizontal. उनके बीच में एक हल्का सा गैप रह जाता है. Dehiscence means weakness in the wall. So normally when you look at a pharynx क्या है? It is just an upward continuation of esophagus. मतलब गट का continuation है. गट we all study. गट में क्या है? म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा है, मसल्स हैं, एंड बाहर एडेंटिशिया है या सिरोसा है. सो pharynx is just a continuation of gut. और कुछ नहीं. pharynx क्या है भाई? You only swallow food or whatever drinks you are having, you swallow it. So food material is passing through the pharynx. So it is just a part of gut. अब होता क्या है? This area जो मसल है, which is forming an important part of the wall of the pharynx, वो वहाँ missing है. Therefore we call it dehiscence. यहाँ पर ये कमी हो गई है, dehiscence. इसका भी होता है ना, when you study for so many days, एक दिन नहीं पढ़ते तो वो दिन कि वीक का वो डे dehiscence वाला हो जाता है कि आज कम हुई है पढ़ाई, और dehiscence हो तो there is a dehiscence over है. बस वहीं से sometimes the diverticulum may arise, known as Zenker's diverticulum. diverticulum बाहर आ सकता है. याद रखो Zenker's सर्जरी का फेमस क्वेश्चन है. What are surgical procedures done
क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, देयर बी हेलिटोसिस, बेड ब्रेथ, यहाँ पेन हो सकता है, देयर कैन बी सम स्वेलिंग, देयर कैन बी डिस्फेजिया एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी क्लिनिकल फाइंडिंग्स. तो याद रखना ओल्ड एज में मिलता है, तो यू दैट यू स्टडी इन सर्जरी इन डिटेल. तो हियर द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव फॉरवर्ड. या हाँ जी, नाउ फेरिंग्स हम आ गए सिंपल लैरिंग्स में. Which of the following is an abductor? याद रखो abductor, abductor, abductor जो दूर ले आता है. किसी को एबडक्ट कर लिया, किसी को किडनैप कर लिया, तो दूर ले गया उसको अपनी जगह से, एबडक्शन, बाहर ले आना. Which of the following is an abductor vocal cord? जिससे कि more air can pass through the larynx. कौन सी मसल है भाई? Try to answer. Lateral cricoarytenoid, thyroidnoid, epiglottic और posterior. Yeah. Which of the following is an abductor of vocal cord? The answer is, which of the following is an abductor? Which of the following is the only abductor? ये भी ऐड कर सकते हो, because that is the only abductor. उसके अलावा कोई abductor ही नहीं vocal cord का. The only muscle that is the PCA. ये this should be at the tip of your tongue. ये आपकी टंग के टिप पे होना चाहिए. PCA मतलब abductor vocal cord. फैला देता है vocal cord को, more air can pass. When you need a deep breathing, है ना, और anything when you need to spread out the vocal cord, the more air can pass, you can speak out loudly, जो भी कुछ. PCA is the only muscle. PCA is the only abductor. It is the only abductor. याद रखो. Supplied by which nerve? This can be also asked. कौन बताएगा ये? The posterior cricoarytenoid is supplied by which nerve? कौन सी nerve supply करेगी? I am writing. If you are thinking of this, then your answer is correct. The recurrent laryngeal nerve supplies PCA. It is a nerve of 6 pharyngeal arch. ये भी ले लो यहाँ पर. Everything is correlated with each other. अगर आप ये ना सोचे तो fine, very good. Yes, very good, Aman. It was RLN, recurrent laryngeal nerve. ठीक है? So larynx, I say one more thing. If you are finding it difficult understanding anything, open the Unacademy app, download कर लो app. I hope you must have. नहीं तो कर लो. Go through my profile, Dr. Ankit. इसमें special classes हैं. Have a look at them. There are many MCQ classes. There are many important topics classes, which will give you a good idea. कि भाई क्या है, in any topic, if you are having doubt, that can be sorted out. Or even in this Unacademy channel, this is the different Unacademy channels. Na? One is the Unacademy NEET PG channel. One is the Unacademy this Desi Doctor Abroad channel. So you can go to the NEET PG channel also. वहाँ भी you can get many videos in anatomy, right? So don't worry. Because larynx, I remember I took a YouTube session. Details of larynx. Pharynx also did the YouTube session. So you can check over there the details. अगर details चाहिए, if you want, if you don't want, skip it. छोड़ दो. दिमाग वहीं लगाओ जो जरूरत है. समय की मांग क्या है? What is the need of the hour? So बोलता है समय की मांग क्या है, उस पर ध्यान दो. You need any topic, वो चीज मिल रहा है, go through it. नहीं तो छोड़ दो उसको. Yeah? Good judicious use of time. Intractable cuff. Recent question. Intractable cuff reflex on scratching the floor of external auditory meatus due to which nerve? बताइए भाई. External, and you are scratching the external auditory meatus, cuff reflex arises. क्या यहाँ से खांसी कैसे? There is a nerve over here supplies the sensory area in the external meatus. That nerve is responsible for cuffing reflex. So brain को नहीं पता ना ये क्या हो रहा है. Brain is not looking कि you are scratching the external auditory meatus or there is something stuck in the neck. वो तो खांसी आ जाएगी इसको. Which is that nerve. A's and B's क्या भाई? ये auriculotemporal, B क्या auricular branch of vagus. अच्छा, A B B. A हट गया, B B हो गया. Yes, it is B. Answer is B. Auricular branch of vagus. Vagus ही तो supplies the muscles of pharynx, larynx. So common sense. If you don't know it, कुछ common sense लगाओ exam में. That vagus is for cuff. मतलब cuff is contraction of the muscles of larynx, pharynx. Cuff होगा ना उससे. It is only the vagus. Auriculotemporal nerve क्या है? It is a branch of mandibular nerve. Yes, it will supply the auricle. It will supply the external auditory meatus also. But it has nothing to do with cuff reflex. Same great auricular nerve, ये cervical plexus की branch है, C2, C3. It is simply sensory around the area of the angle of mandible, and it will also supply the lateral part of pinna. Facial may supply some part of external auditory meatus, but again इसका कोई role नहीं है in the cuff reflex. Answer is auricular branch of vagus. It has another name. एक और नाम होता है बेटा इसका. If you study in ENT पढ़ो कोई PL ढिंगड़ा book, है ना? So there is a name of the
स्पेशल नेम गिवन टू ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस, एक बोलते थे हम लोग जैकबसन्स, एक बोलते थे आर्नोल्ड्स नर्व। जैकबसन्स आई होप इज द नेम गिवन फॉर द नाइन्थ नर्व, दिस इज द आर्नोल्ड्स नर्व, ARNOLDS, ठीक है, याद रखिए। वेरी गुड, आर्नोल्ड्स, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेज सिंड्रोम, अगेन टॉपिक है क्या आपका, टॉपिक बेटा पैरोटिड का टॉपिक है, और यू कैन से इट इज अ टॉपिक फ्रॉम द फेस। फ्रेज सिंड्रोम, फेस बोल रहा हूं मैं, टॉपिक नॉट फ्रेज। फ्रेज सिंड्रोम इज ड्यू टू लेजन ऑफ नाइन्थ नर्व, कॉर्डा टिम्पनी, ट्राइजेमाइनल, ऑरिकुलोटेम्पोरल। लेट मी, ये तो नाइन्थ हो गई। कॉर्डा टिम्पनी इज अ ब्रांच ऑफ 7, ट्राइजेमाइनल तो 5th हो गई, ऑरिकुलोटेम्पोरल अगेन इज अ ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल। फ्रेज सिंड्रोम, गस्टेटरी स्वेटिंग, कुछ खाया चेहरे पसीना आ गया, कुछ खाने गए कुछ भूख लगी, गस्टेटरी, गस्टेटरी मींस टेस्ट सेंसेशन, एंड फेस स्टार्ट्स टू स्वेट, या स्वेट लाल होने लगा, स्वेटिंग होने लगी, उसको बोलते हैं फ्रेज सिंड्रोम। ऑल्सो गस्टेटरी स्वेटिंग। कौन सी नर्व गई बेटा इसमें? बी क्या बेटा? बी का व्हाट? टिम्पनी नर्व, श्योर। फ्रेज सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज गस्टेटरी स्वेटिंग, इसका नाम सुन लो, गस्टेटरी स्वेटिंग। गस्टेटरी, गस्टेशन मतलब टेस्ट, टेस्ट में स्वेटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बहुत मिर्च का खाना नहीं, समथिंग इज नॉट वेरी चिली, बट गस्टेटरी स्वेटिंग नॉर्मल, सॉरी गस्टेटरी स्वेटिंग, हाँ इट्स ड्यू टू लेजन ऑफ, बताइए भाई। तो बीबी पे जा रहा, बी क्या है? कॉर्डा टिम्पनी, गलत आंसर, इट इज नॉट कॉर्डा टिम्पनी नर्व, आंसर इज ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। ये याद रखो इसको, एकदम क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, रिफ्लेक्सली टिप ऑफ टंग, कुछ भी कह दो। when we used to study in MBBS ना, कुछ questions होते थे in viva which was told to us should be at the spinal cord level, मतलब कि रिफ्लेक्स आना चाहिए। पूछा, आंसर afferent efferent, फ्रेज सिंड्रोम, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ठीक है, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। इस सिंड्रोम का दूसरा ना, एक तीसरा नाम है ऑरिकुलोटेम्पोरल सिंड्रोम, एक मिनट में सुन सकते हैं। ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इज द पोस्ट गैंग्लियोनिक, yet well leveled and solid, पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व है पैरोटिड ग्लैंड की। सो इन द पैरोटिड ग्लैंड ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व विल सेंड फाइबर, स्किन ओवर हेयर इज सप्लाइड बाय ग्रेट ऑरिकुलर नर्व अराउंड द पैरोटिड रीजन। Suppose there is a penetrating injury or a surgeon is operating on the parotid gland. Obviously, he has to cut the skin as shaped, which you study in the Bailey law, as shaped suture and all that parotid gland surgery kari and close it up. When you closing up, then what happens? Some fibers of the great auricular may have connections with some fibers of the auriculotemporal nerve, जो कि उसके deep है. Now, what happens is when there is a taste sensation, normally auriculotemporal nerve will ask parotid, will induce parotid to secrete saliva. लॉजिक। बट इन पोस्ट ऑप पेशेंट्स में क्या होता है, और इन पेनिट्रेटिंग इंजरीज द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व विल आल्सो सेंड सम सेंसेशन टू द ओवरलाइंग स्किन, बस प्रॉब्लम आना शुरू, वो होता है आपका सिंपल। सो यू नीड अ पेनिट्रेटिंग इंजरी और अ पेनिट्रेटिंग प्रोसीजर ओवर द पैरोटिड रीजन फॉर फ्रेज सिंड्रोम टू अकर। ये याद रखिए, उस क्वेश्चन में हिस्ट्री में होगा ही, बहुत क्वेश्चन आए इस पे। उस क्वेश्चन में होगा बच्चा एक कुछ वो डार्ट्स वाला गेम होता है, मारते निशाना, वो खेला तो उसमें आगे उसको यहाँ लग गया और कोई की लग गई और सर्जरी है ओल्ड एज पेशेंट में, तो दिस सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री विल कम इन द एग्जाम। आंसर ऑरिकुलोटेम्पोरल फ्रेज सिंड्रोम होगा, ठीक। ट्रीटमेंट ऑल ज्यादा कुछ है नहीं सक्सेस, बट या फ्यू थिंग्स हैव कम अप, बोटुलिज्म टॉक्सिन एंड ऑल, उसकी बात अलग। लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट वन। कोई डाउट है? इफ यू हैव, राइट इन द कमेंट बॉक्स। मसल डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च, टॉपिक क्या है? टॉपिक इज ब्रेंकियल आर्चेस ऑफ फेरिंजियल आर्च, ये टॉपिक है। बताइए इसमें आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? मसल डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट क्या? फेरिंजियल आर्च, माइलोहॉयड, पोस्टीरियर डाइकेस्टिक, लेवेटर पैलेटिनी और बक्सिनेटर। करेक्ट नाम उसका पैलेटिनी होना चाहिए, जोड़ दिया, एंड बक्सिनेटर। बताइए भाई, व्हाट डू यू थिंक इज आंसर? ए पे जा रहा है, बड़ा अपन ए आई सो, देन ए गायब हो गया, अब बी आ गया, ओके। बताइए बताइए, टेक योर टाइम। या मसल डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट फेरिंजियल आर्च। देखो आते हैं उस पे, क्या आंसर आने लगे, बी एंड सी। बी क्या है भाई? ये है सी। अच्छा ध्यान सुन लो, अगेन ये टॉपिक यू विल फाइंड आउट इन इफ यू लुक एट स्पेशल क्लासेस ऑन यूट्यूब, बट अभी सुन लो फॉर द प्रेजेंट करंट टाइम। 5 आर्चेस होती हैं, लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। आर्चेस,
एक फर्स्ट आर्च है, एक सेकंड आर्च है, एक थर्ड आर्च है, एक फोर्थ आर्च है, फिफ्थ इज एब्सेंट, याद रखिए, एंड देयर इज अ सिक्स्थ आर्च। फिफ्थ इज एब्सेंट, लिख लो कहीं व्हेन इफ यू आर मेकिंग नोट्स, फिफ्थ इज एब्सेंट। व्हाट इज द नर्व सप्लाई? फर्स्ट आर्च की नर्व सप्लाई है मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल, सेकंड आर्च की नर्व सप्लाई है फेशियल नर्व, थर्ड आर्च की है ग्लॉसोफेरिंजियल, फोर्थ की है सुपीरियर लैरिंजियल, एंड सिक्स्थ की है रिकरेंट लैरिंजियल। बात की थी ना रिकरेंट लैरिंजियल एक प्रीवियस क्वेश्चन में। दीज टू आर ब्रांचेस ऑफ टेंथ नर्व। दे आर सेइंग मसल डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट आर्च। फर्स्ट आर्च से मसल जो डिराइव होगी दैट विल बी सप्लाइड बाय मैंडिबुलर नर्व। अब मैंडिबुलर नर्व किस मसल सप्लाई करती है? दैट इज द आंसर, इट सप्लाइज ऑल द मैस्टिकेटरी मसल्स, ऑल फोर, ऐसे लिख देता हूं फोर, ऑल फोर मैस्टिकेटरी मसल्स, खत्म बात। बट यहाँ पे तो कोई मैस्टिकेटरी मसल है ही नहीं, neither mylohyoid neither nor digastric। what are the masticatory muscles? masseter है, temporalis and lateral and medial pterygoid। फिर how to choose the answer? Apart from supplying the four masticatory muscles, the mandibular nerve also supplies four other muscles। remember the mnemonic है बेटा MATT। ये mnemonic याद रख लो, काम हो गया। just have to remember the mnemonic। M से आंसर है माइलोहाइड। वेरी गुड पायलट MX, चलो गुड, आंसर आ गया माइलोहाइड। एम से आपका आंसर है जो क्वेश्चन में था यहाँ पर माइलोहाइड। ओके, आई शिफ्टेड दिस साइड, लिख लूं मैं एम से माइलोहाइड, याद रखिए। ए से एंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, ऑप्शन में पोस्टर बेली था। टू टीजा टू टेंसर, टेंसर टिम्पिनी, टेंसर पैलेटिनी। टेंसर टिम्पिनी होता है मिडिल ईयर में, टेंसर पैलेटिनी आपका सॉफ्ट पैलेट में। मैट याद रखो, मैट, MATT मैट, ठीक है, मैट याद रखिए। एंड देयरफॉर आंसर बन गया हमारा सीधे माइलोहाइड, मैट। पोस्टेबल डाइगेस्ट्रिक सुन लो, सेवंथ न सप्लाइज इट। ऑल द मसल्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट सप्लाइड बाय फेरिंजियल प्लेक्सस, बक्सनेटर बाय फेशियल नर्व। फेरिंजियल प्लेक्सस किससे बना? 9th and 10th। तो मोटर सप्लाई है 10th। हम पूछ रहे थे फर्स्ट आर्च जिसकी की मैंडिबुलर नर्व, आंसर है हमारा ऑप्शन ए, याद रखिए इस बात को। Am I clear to all of you? ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई, फेरिंजियल आर्चेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो, which of the following belongs to, हाँ, स्पेशल विसरल इफरेंट कॉलम। कुछ लोगों को टॉपिक नहीं आता होगा, आई एम श्योर, नो प्रॉब्लम, इट इज ओके, इट इज वेरी 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 नॉर्मल। Go through some of the special classes YouTube of on my only, and you can have a look at it। 15-20 minutes में this topic will be done। बट यहाँ पे आंसर बताइए स्पेशल विसरल डिफरेंट कॉलम में विच न्यूक्लियस, इट इज अ न्यूरो एनाटॉमी क्वेश्चन। NTS है, न्यूक्लियस टेक्टस सॉलिटेरियस है, और न्यूक्लियस एम्बिगस है, डॉर्सल न्यूक्लियस है, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। फॉर दोज हु आर स्टिल वंडरिंग ये क्या है ये स्पेशल विसरल डिफरेंट, इट इज द फॉर द फेरिंजियल आर्चेस, जो हमने अभी पढ़ा था फेरिंजियल आर्चेस, द नर्व सप्लाइंग इट, जो जितनी सारी नर्व सप्लाई करती है फेरिंजियल आर्चेस को, दे कम अंडर स्पेशल विसरल इफरेंट कॉलम। आंसर चूज कर लो अपना, ए आ रहा, ए बेटा न्यूक्लियस ट्रैक्टस फॉर्म, दिस रॉन्ग आंसर, गलत है भाई बेटा। न्यूक्लियस ट्रैक्टस सॉलिटेरियस इज फॉर द टेस्ट, ये टेस्ट के लिए है। द नर्व्स इन्वॉल्व्ड आर 7, 9 and 10। तो सर कौन से कॉलम में आएगा ये? सर आएगा आपका विसरल आफरेंट। टेस्ट क्या है? इट इज आफरेंट, ये आफरेंट। हम क्या इफरेंट बात कर रहे हैं, इफरेंट मतलब मोटर की बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस लगाओ। हम इफरेंट मतलब समथिंग शुड बी सप्लाइंग। फेरिंजियल आर्चेस में क्या था? दोस मसल्स सप्लाइंग द मसल्स, ये टेस्ट है, टेस्ट तो ऑपरेंट हो गया। न्यूक्लियस एम्बिगस ये है हमारा, हाँ वेरी गुड पायलट। ABCD, जस्ट राइट ABCD, तो पूरा एक्सप्लेनेशन टाइपिंग योर टाइम एंड एनर्जी विल बी सेव्ड। बी है बेटा आंसर इसका, न्यूक्लियस एम्बिगस, दैट इज द आंसर। इट्स फाउंड बाय 9th, 10th and 11th नर्व, ठीक है। इफ यू लुक ओवर हियर, हम जो यहाँ पे बात कर रहे थे आर्चेस, जो 9th और 10th है इसके साथ क्रेनियल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व आ जाती है, एंड दे फॉर्म अ कंबाइंड न्यूक्लियस एम्बिगुअस, जो कि यहाँ पूछ रहे हैं, एंड दैट बी इज द आंसर। डॉर्सल न्यूक्लियस एम्बिगुअस ये बेटा आएगा जनरल विसरल इफरेंट में। वही कह रहा हूँ, टॉपिक पढ़ लीजिए, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, इसको टॉपिक का नाम लिख लो सब लोग एक जगह। एंड दिस इज हाईली स्कोरिंग। हाईली स्कोरिंग मतलब कि इट विल ओनली टेक योर 15-20 मिनट, 15-20 मिनट्स, एंड देन इट नीड्स 2-4 रिवीजन कर लेना, 2-2, 5-5 मिनट के बस। अगर क्वेश्चन आ गया इस टॉपिक से, पक्का सेट आंसर होता है इसमें।
देयर इज नो इफ एंड बट, इट इज लाइक मैथ्स है, 1 + 1 2 होगा, पक्का एक आपका एक क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, एंड दिस यू कैन फाइंड आउट इन अनअकैडमी, वही यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, एनाटॉमी और स्पेशल क्लासेस, माई स्पेशल क्लास आपको मिल जाएगा, ठीक। सो गो थ्रू इट। mesencephalic trigeminal, this again an afferent but somatic afferent, general somatic afferent में आएगा, ठीक है। बी आंसर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। यू आर एग्जामिनिंग, आप क्या एग्जामिन कर रहे हो, यू आर एग्जामिनिंग समथिंग, यू एग्जामिन द लिवर ड्यूरिंग अ सर्जिकल प्रोसीजर, द गॉल ब्लैडर विल बी फाउंड इन इट्स फोसा between which two anatomical lobe। भाई गॉल ब्लैडर सबको पता है, इट इज एट द लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर, ये रहा लिवर, ये है फंडस ऑफ गॉल ब्लैडर, एवरीवन नोस, ये यहाँ फंडस गॉल ब्लैडर आता है जो कि अंदर ये फोसा में है। क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये है कि एनाटॉमिकली कौन से लोब्स के बीच में, इज इट बिटवीन क्वाड्रेट एंड लेफ्ट, क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट, राइट एंड क्वाड्रेट, क्वाड्रेट एंड राइट। सर ये सब थोड़ा कंफ्यूजन है, बिल्कुल है। लिवर अगेन टॉपिक, एंड गुड न्यूज इज आपको मिल जाएगा, इफ यू लुक एट माय स्पेशल क्लासेस मिल जाएगा टॉपिक, सारे कोइनॉट सेगमेंट्स, ऑल द लोबर डिवीजन, फिशर्स एंड ऑल, इवन पेरिटोनियल रिफ्लेक्शन अराउंड द लिवर, क्लियर हो जानी है सब कुछ, एकदम क्रिस्टल क्लियर। बस फिलहाल इसका आंसर दीजिए। अशफाक गोइंग विद ऑप्शन नंबर सी, राइट एंड क्वाड्रेट। वेल डन अशफाक, वेल डन, आंसर सी ही है, वेरी गुड। सो चलो पहले 1 मिनट में देख लेते हैं, दिस इज इमेजिन ये बड़ा सा लिवर है ना, हिपैटोमेगली हो गया थोड़ा सा, बट जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंटीरियर व्यू, दिस इज दी, वी ऑल नो फेल्सिफॉर्म लिगामेंट आता है, अटैचमेंट है, इज गोइंग टू द एंटी एब्डोमिनल वॉल। बट रिमेंबर ये जो ये सेगमेंट है सामने वाला, दैट इज द क्वाड्रेट लोब। यहां पर है बेटा गॉल ब्लैडर, फंडस दिख रहा है, जीबी आई एम राइट इन गॉल ब्लैडर। What happens is nowadays the right and left lobe are said to be divided by this line, इसको डॉट डॉट कर देते हैं, this is known as the cantilever line और cholecystocable line। ऊपर आईवीसी का फोसा है पीछे की तरफ, on the posterior aspect of the IVC, तो cholecystocable line और cantilever line। अब गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट बिटवीन, ये पूरा राइट है बेटा, दिस होल इज द राइट लोब, राइट फंक्शनल और राइट फिजियोलॉजिकल लोब ऑफ लिवर, ये सारा इंक्लूडिंग क्वाड्रेट एंड दिस एरिया, दिस होल इज द लेफ्ट लोब, ये बड़ा लेफ्ट लिख देता हूं, LEFT। तो देखो गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट बिटवीन राइट एंड क्वाड्रेट लोब, आंसर बना ये, दिस इज द आंसर, वेल आंसर्ड बाय, यस अशफाक, वेल आंसर्ड, ठीक है, आंसर ये है, गॉल ब्लैडर इज फाउंड बिटवीन दिस एंड दिस। तो अगेन दिस टॉपिक you will get in detail, give it at least 20 minutes or half an hour, things will be clear, ठीक है, ठीक है। So there are segments also, 8 segments हैं, कई सारे features हैं, it's a detailed topic but giving you for this question this much explanation is sufficient। Can move further, चलिए, right, okay, thorax में आ जाओ। 25-year-old man is brought to the emergency after suffering a deep stab wound directly through the surface marking, ध्यान से देखो, stab wound directly through the right 5th intercostal space in the mid clavicular line। ये रही हमारी clavicle, this is mid clavicular line, start counting the ribs, 2nd 3rd 4th 5th intercostal space, mid clavicular, यहाँ पर कहीं there's a deep stab wound, the mid clavicular line, यहाँ पर deep stab wound हुआ है। Which of the following structure is most likely pierced? कहाँ गया वो जो चाकू था, वो जो whatever the it was a knife or anything, कोई भी nail हो, कुछ भी हो, it entered, it pierced what? Superior lobe of right lung, lingula of the lung, inferior or the middle lobe? ABCD बताइए भाई। CABC, okay बताओ, so those think 5th intercostal space, mid clavicular line, right side, बात खत्म। think गुड क्वेश्चन, सरफेस मार्किंग है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन है, सरफेस मार्किंग ऑफ लंग, ये आनी चाहिए। इज दिस इंपॉर्टेंट सर? यस इट इज डैम इंपॉर्टेंट। व्हाई बेटा? व्हेन यू आर ऑस्कल्टेटिंग, कुछ ऑस्कल्टेट करते हो, आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रेथ, पेशेंट को बोलो गहरी सांस लो, आई एम ऑस्कल्टेटिंग द ब्रीदिंग साउंड, हाँ यहाँ कुछ गड़बड़ आ रही है, क्या लिखोगे? व्हाट विल यू से? व्हाट विल यू राइट ऑन द प्रिस्क्रिप्शन पेपर? देयर सम एबनॉर्मल साउंड्स फाउंड ऑन द राइट लंग, बट इट इज वेरी वेरी इनकम्प्लीट ना, अब वो लिखना पड़ेगा ना, ये इट इज प्रोबेबली राइट अपर लोब, मिडिल लोब या लोअर लोब। अब देखो यहाँ पर आराम से
सपोज ये बेटा आपका राइट लंग, दिस इज राइट लंग, फ्रॉम बिहाइंड, ये आप इंटीरियर देख रहा हूँ, बिहाइंड देयर आर टू वी कैन से लाइंस और फिशर्स, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स फिशर। ठीक है, होता क्या है ऑब्लिक फिशर एंड ट्रांसवर्स फिशर, इमेजिन कर लो यहाँ पे लेफ्ट लंग भी आ गई। ऑब्लिक फिशर इज गोइंग स्टार्टिंग फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से स्टार्ट करते हैं एंड देन इट कम्स लाइक दिस अगेन ऑन द लेफ्ट साइड, ऑब्लिक फिशर एंड एंटीरियरली ऐसा आ जाता है। So anteriorly if you look on the right or the left, तो बेटा ये पूरा का पूरा this is the part anteriorly above the oblique fissure, this is the part anterior below। तो ये क्या बनेगा, this is the lower lobe of the right lung, this is the lower lobe of left lung। But right lung में there is one more fissure that starts from the around the fourth costal cartilage and it intersects the oblique line at the mid oblique fissure at the mid axillary line around the fifth rib। ये कहां तक जाता है, it goes till the sixth costal cartilage। this is what, this is a T for transverse fissure, ये also oblique fissure था, this is oblique। oblique fissure is found only in the, oblique fissure is found in both the lungs, transverse only on the right। इतनी बात क्लियर। तो अब याद रखो 4 नंबर, 5 नंबर एंड 6 नंबर, इनके बीच में क्या है, मिडिल लोब ऑफ राइट लंग, ये अपर लोब ऑफ राइट लंग। एम आई क्लियर, ठीक है ना। ट्रांसवर्स फिशर के ऊपर दिस होल इज अपर लोब ऑफ राइट लंग, बिटवीन ट्रांसवर्स ऑब्लिक दिस इज मिडिल लोब, उसके नीचे है लोअर। लोअर आप कहोगे सर लोअर तो बहुत छोटा सा है, पर लोअर छोटा दिख रहा है फ्रॉम एंटीरियर, इफ यू लुक एट दिस डॉटेड लाइन, ये क्या है पीछे से, दिस होल इज लोअर लोब बट ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट। अब इंजरी कहां हुई थी, इन द फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, तो ये 6th कॉस्टल कार्टिलेज है, तो इसके ऊपर क्या होगा, दिस वुड बी द 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, यही होगी मिड क्लेविकुलर लाइन, इट इज प्रॉब्ली फॉलिंग अंडर द राइट मिडल लोब। आंसर क्या बनेगा हमारा, मिडल लोब ऑफ राइट लंग। एम आई क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं एंड इट इज अ वेरी गुड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, यू हैव टू सी अ लिटिल बिट ऑफ सरफेस मार्किंग। एम आई क्लियर। सो अपर लोब देखो कहां है, मिडिल लोब कहां है, अपर लोब एंटीरियरली ये सारा है, पोस्टीरियरली अपर लोब इज ओनली दिस, पोस्टीरियरली इतना है, एंटीरियर इट इज दिस। लोअर लोब एंटीरियरली इज वेरी स्मॉल बट पोस्टीरियरली लोअर लोब इज ह्यूज। तभी लोअर लोब में देयर आर 5 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स, रिमेंबर, anterior basal, posterior basal, medial basal, lateral basal and apical or superior। There are yes or no? Middle lobe बस इतना सा है anteriorly। Left lung में no confusion, upper lobe is this, anteriorly posteriorly, lower lobe is this, anteriorly and posteriorly। Simple। चलिए, answer is excuse me, option number D over here, right? All are paired, sir can we expect this, बेटा एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हो, हाँ फाइन, ऑब्वियसली नीट पीजी की यू कैन, व्हाई नॉट। अच्छा यू योरसेल्फ आस्क, सब लोग अपने आप से पूछो, क्या ये क्वेश्चन क्या बहुत ही सुपर पीजी लेवल का था, शुडंट वी नो, हम ऑस्कल्टेट कर रहे हैं, हमें पता नहीं होना चाहिए कहां पे अपर लोब है लोअर लोब है, ये इतना बड़ा क्वेश्चन था, या हमने कभी सुना ही नहीं, और वी हैव नेवर हर्ड ऑफ ऑब्लिक और ट्रांसवर्स फिशर। अगर ये सब चीजें सुनी है तो क्वेश्चन आप कैसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, यस और नो। अगर ये सब सुना है, इट इज जस्ट फॉर प्लेन एमबीबीएस लेवल। अगर कोई सिंपल एमबीबीएस लेवल पर्सन इज आल्सो प्रैक्टिसिंग इन योर एरिया, उसको भी पता होना चाहिए दिस इज नॉट अ पीजी लेवल। आई डू यू एग्री और नॉट, याद रखो। चलिए, आई होप अशफाक वेरी फास्ट टू आंसर, भाई कमाल है। ऑल आर पेयर्ड कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंक्स एक्सेप्ट, टॉपिक ये बन गया, सारे पेयर्ड है, सबका पेयर बना हुआ है, सिंगल कौन है यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन में ऑप्शन में सबके पेयर हैं, सिंगल कौन है वो बताना है अभी। एक तो आंसर आ चुका है भाई, एक ने सी ऑप्शन बोल दिया, एरिटेनॉइड, कॉर्निकुलेट, एपिग्लोटिस, यूनिफॉर्म। हाँ जी, एपिग्लोटिस बेचारा सिंगल रह गया है, चलो कोई बात नहीं, काम का तो है, बिकॉज इट प्रिवेंट्स द एस्पिरेशन। सिंगल है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है भाई, इफ दिस इज नॉट देयर व्हेनेवर यू स्वेलो, आपका तो निमोनिया एंड गॉन। So epiglottis is the elastic cartilage, is unpaired. Apart from this, which are unpaired cartilages? और कौन है भाई unpaired? इसके अलावा thyroid cartilage and cricoid cartilage. Thyroid and cricoid, they are also unpaired cartilage. Elastic, these are mainly hyaline. अच्छा एक चीज कौन बताएगा? In the whole respiratory tree, पूरा का पूरा आप ले लो, larynx ले लो, whole respiratory trachea, नीचे bronchi, bronchiole. In the whole respiratory tree, which is the complete cartilage? Complete मतलब complete
रिंग ऑफ कार्टिलेज कौन बनाता है? आई एम श्योर सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग द आंसर। एक मतलब सारे कार्टिलेज टुकड़ों में है, कोई ऐसे प्लेट बना रहा है, कोई ऐसा है, कोई इतना है, कोई इतना है। एक पूरी रिंग कार्टिलेज किसकी है? सिर्फ एक आंसर है उसका। सर सेम टॉपिक, एग्जाम आर अच्छा। चलो गुड। पूरी रिंग किसकी है? पूरी रिंग है सिर्फ एक की, कंप्लीट रिंग, सी से कंप्लीट और सी से क्रिकॉइड। क्रिकॉइड इज द कंप्लीट रिंग ऑफ। अगेन आई एम सेइंग लैरिंग्स के टॉपिक्स हैं, लेक्चर्स हैं इन द यूट्यूब सेशन इन अनअकैडमी यूट्यूब चैनल। मैंने लिए हुए हैं, गो एंड प्लीज हैव अ लुक एट इट। अगर कोई कंफ्यूजन आता है इन कार्टिलेजेस और मसल्स एंड एक्शन कुछ भी क्लियर, चले आगे। चलो जी। अब फ्रैक्चर एट द मार्क्ड एरो लीड्स टू ब्लीडिंग। अब मार्क्ड एरो देखो बेटा, ये रहा मार्क्ड एरो, बता देता हूँ, ये रहा। फ्रैक्चर एट द मार्क्ड एरो लीड्स टू ब्लीडिंग ऑफ विच आर्टरी? यहां पर एट दिस एरो यू आर सीइंग सम स्यूचर्स आल्सो जॉइनिंग। ये कुछ स्यूचर्स आ रहे हैं, बना देता हूं मैं स्यूचर्स भी। फ्यू स्यूचर्स आर मीटिंग और यहां पर एक फ्रैक्चर हो जाता है। एट दिस पॉइंट देयर इज अ फ्रैक्चर। कौन सी आर्टरी ब्लीड करेगी? देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेशन लगा सर, ये कैसे क्वेश्चन है, बट इट इज वेरी कॉमन asked question and also common thing seen. कौन सी आर्टरी? मिडिल मेनिंजियल, डीप टेम्पोरल, एंटीरियर सेरेब्रल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी? Answers have started to pour in as A's and A's. Aman, Sordeep have started answering. हाँ जी, ये एरिया क्या है? What is this? H shaped suture on the side of head. H for Haryana. H shaped suture on the side of the head. Where the bone is weak. भाई जितने suture उतने weak, जितने joints उतने weak. कोई कपड़ा है, कोई कपड़ा पहनते हो, देयर इज मिनिमम जॉइंट्स इन देयर, ऑब्वियसली क्लॉथ इज टफ, अब जहां जो जॉइंट्स होंगे वहां सेम थिंग ओवर हियर। सो इट इज अ वीक एरिया, सो बोलते हैं पी साइलेंट टीरियन बोलते हैं। दिस एरिया नोन एज टीरियन। यहां पे कोई अगर लड़ाई होगी, किसी ने हॉकी स्टिक या बैट से मार दिया एंड यहां लग गई, बोन माइट फ्रैक्चर, और फ्रैक्चर बाहर तो जाएगा नहीं, अंदर जाएंगे, बोन स्पिक्यूल्स विल गो इनसाइड द बोन एंड दे में रप्चर आर्टरी जो है एंटीरियर ट्रंक ऑफ मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। That might be damaged on the inside of skull, बाहर नहीं अंदर की तरफ। meninges कहाँ है? meninges are coverings of brain inside the skull. So at the terion there is anterior branch of middle meningeal artery just inside it and that can lead to an hemorrhage. कौन सा hemorrhage होता है बेटा? वो कौन बताएगा? ये तो बहुत कॉमन है। Is it subdural hemorrhage, epidural hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, intracerebral hemorrhage? कौन सा hemorrhage? चार ऑप्शन दे दिए। Rupture of this artery will lead to which hemorrhage? फिर ऑप्शन सुन लो, subdural, epidural, subarachnoid, intracerebral hemorrhage. For those who are thinking EDH, they are thinking correct. EDH आंसर है, epidural hemorrhage. क्रेनियोटमी की जाएगी, बरहोल, टेक द ब्लड आउट, नहीं तो ब्रेन कंप्रेस हो जाएगा एंड इट कुड लीड टू इवन डेथ। इट इज अ, हाँ जी, EDH वेरी, इट इज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन, याद रखिए। क्लियर? टीरियन है। एच विच बोन आ गया, एक और क्वेश्चन है, विच बोन्स आर प्रेजेंट ओवर है? देख लो भाई, फ्रंटल है, पैराइटल है, टेम्पोरल है एंड ग्रेटर विंग ऑफ स्फेनॉइड। These four bones they form a H-shaped suture over here. Frontal, parietal, temporal and greater wing of sphenoid. ऐसे sphenoid है but greater wing of sphenoid. Again sphenoid is an important bone. Questions have started to come in. If you want to see this topic sphenoid bone, again YouTube में you will see my lecture in Unacademy Unit PG channel, मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। Yes, epidural. Ischemic or ischemia of which part of the internal capsule leads to contralateral motor loss in upper and lower limb? Ischemia अगर हो गया इंटरनल कैप्सूल में और अपर लोअर लिम्ब में मोटर वीकनेस है, पैरालिसिस, स्ट्रोक हो गया, सिंपल सी बात है, लकवा मार गया, हिंदी वर्ड से ना, लकवा मार गया इनको और पैरालिसिस, एक वन साइड ऑफ द बॉडी इज पैरालाइज्ड। आया कि जी इंटरनल कैप्सूल में ब्लीडिंग हुई है। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अगर खाली अपर लोअर लिम्ब में मोटर लॉस है, ब्लीडिंग इज इंटरनल कैप्सूल, इट शुड बी इन विच पार्ट ऑफ इंटरनल कैप्सूल? आगे एंटीरियर, पोस्टीरियर लिम्ब, सब और रेट्रोलेंटिफॉर्म, ये आपके ऑप्शंस हैं। सौदी सेइंग ए, एंटीरियर लिम्ब। अच्छा, internal capsule we know it has an anterior limb, it has a genu, it has a posterior limb, और नीचे जाता है sublentiform part, पीछे जाता है retrolentiform part, S and R। anterior limb, A for anterior limb, G से genu, P से posterior limb। बताइए भाई, ऐसी सी these are the clinical situations,
स्ट्रोक की क्लिनिकल सिचुएशन ये है, क्या आंसर दोगे? एज एंड डीज आ रहा है। देखो ध्यान से, इंटरनल कैप्सूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एट द लेवल ऑफ जेनू, यहां पे कौन से फाइबर्स होते हैं याद रखिए, दीज आर कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। कॉर्टिको न्यूक्लियर, ये व्हाट आर दिस कॉर्टिको न्यूक्लियर, आल्सो नोन एज कॉर्टिको बल्बर फाइबर्स। व्हाट डू दे सप्लाई? दे सप्लाई द क्रेनियल नर्व्स। बल्बर या न्यूक्लियर मतलब क्रेनियल न्यूक्लियर। तो इफ द जेनू इज इन्वॉल्व, प्रॉब्लम आएगी हेड एंड नेक में, बट वो भी कम आती है बिकॉज हेड एंड नेक एरियाज आर सप्लाइड बायलेटरली सप्लाइड। तो दोनों साइड इंटरनल लिम्ब की हमें जेनू प्रॉब्लम चाहिए, बट दैट इज रेयर ना, दोनों साइड इंटरनल लिम्ब में जेनू में प्रॉब्लम आ जाए, दैट इज वेरी 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 रेयर। बट या इफ देयर इज वन साइड जेनू में अगर स्कीमिया होता है, then there can be problems in the lower half of face or in the tongue, ठीक है, क्योंकि there the nerves are not bilaterally that much। अब आगे बेटा posterior, posterior limb has the corticospinal tract, ये आंसर है। यहां पर सारा का सारा pyramidal tract जो आप पढ़ते हो, corticospinal tract that passes through the posterior limb of internal capsule। तो अगर यहां पर ischemia हो गया, there is a blood loss or bleeding or any necrosis over here, अपोजिट हाफ, मगर राइट इंटरनल कैप्सूल की अगर ब्लीडिंग हो रही है इन द पोस्टेरियर लिम्ब और इस्कीमिया, लेफ्ट हाफ बॉडी पैरालाइज्ड, सिंपल। अब दोस ऑफ यू हु आर गोइंग सब एंड रेट्रोलेंटिफॉर्म, बेटा सब लेंटिफॉर्म से बेसिकली वी आर डीलिंग विद ऑडिटरी फाइबर्स एंड रेट्रो से वी आर डीलिंग विद विजुअल फाइबर। याद, am I clear? अमन वेंट विद बी, वेरी गुड। तो पोस्टेरियर लिम्ब कॉर्टिकोस्पाइनल, जेनू है बेटा कॉर्टिको न्यूक्लियर, याद रखिए। एंड ब्लड सप्लाई ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना उसको ढंग से, ठीक है, दैट वी हैव कवर्ड इन न्यूरो एनाटॉमी वाले कोर्सेज। चल लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा एक और क्वेश्चन है भाई, देखो ये क्या है, व्हाट इज दिस ओवर हियर? क्रेनियल नर्व्स विद द पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट आर ए बी सी डी। अगेन रिफ्लेक्स वाला क्वेश्चन है ये, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स अगर बेटर है आंसर निकल आएगा जल्दी। 1 2 3 4 3 5 7 9 3 7 9 10 5 7 9 10। Cranial nerves with parasympathetic component, they come under general visual efferent। ये मैं बता दूं आपको यहाँ पर आंसर क्या है यहाँ पर, so going with C, absolutely correct। 3 7 9 10, these are the 4 cranial nerves which have also carry, ऐसा नहीं है इनका अपना काम नहीं, अपना बहुत सारा काम है। oculomotor supplies the muscles, extraocular muscles, but it also supplies the sphincter pupillae, ciliaris muscle वो parasympathetic component है। seventh nerve supplies the facial muscles, उसके अलावा it will also supply the various glands, salivary glands and even the lacrimal gland। Ninth nerve glossopharyngeal, it also supplies the sensory from the tongue and all, but it also supplies the parotid gland। 10th vagus, so we कहना है क्या, it supplies autonomic to heart, lungs, foregut, midgut, तो बहुत ही बड़ा काम है इसका। So 3 7 9 10 are the 4 cranial nerves which have the parasympathetic component and they fall under the general visual efferent, जो कि टॉपिक मैंने बताया था आपको, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ये टॉपिक था। क्लियर? सो दिस वाज इंपॉर्टेंट ओवर हियर। एंड वन मोर क्वेश्चन, एक्सिलरी शीथ पे आ जाओ, अपर लिम्ब पे आ जाओ। एक रिपीटेड क्वेश्चन, एक होता है बेटा एक्सिलरी फेशिया, एक होता है एक्सिलरी शीथ, दो में डिफरेंस है। एक्सिलरी शीथ वो ट्यूबुलर शीथ है विच इज कैरिंग द एक्सिलरी आर्टरी एंड ब्रेकियल प्लेक्सस, मतलब नर्व्स। एक्सिलरी फेशिया इज अ फेशिया एट द फ्लोर ऑफ एक्सिला, दो अलग चीज है, ये शीथ है, ये है फेशिया, ये। बट शीथ आई कहां से, निकली कहां से, फ्रॉम वेयर इज इट डिराइव्ड, वो क्वेश्चन है। एंड द आंसर सौदीप सिंह इज प्रीवर्टिब्रल, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये याद रखिए एकदम। प्रीवर्टिब्रल फेशिया which is a component of the neck का जो फेशिया बोलते हैं ना, डीप सर्वाइकल फेशिया, उसका मतलब इट इज वन ऑफ द डीपर कंपोनेंट्स ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। डीप सर्वाइकल फेशिया का डीप कंपोनेंट उससे निकलती है, इट्स ट्यूबुलर प्रोलोंगेशन। इस फेशिया का जो ट्यूबुलर प्रोलोंगेशन, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब की तरह, दैट इज एक्सिलरी शीथ, प्रीवर्टिब्रल फेशिया। ये एकदम क्लियर होना चाहिए, PYQ है, सिंगल लाइन क्वेश्चन है, याद होने चाहिए, राइट? ओके, नाउ a couple of more। A female is presenting with the wrist pain on the lateral side. On examination, the following test was positive। You can see over here the hand over here, that is the lateral side, ये medial side। On examination, the following test positive, tendon sheath of which muscle? So this is a test which is done for a disease। Hint दे दूं आपको, D. Quervain's disease एक होती है which you may have studied in anatomy as well as orthopedics।
बी इक्विवेलेंस टीनोसाइनोवाइटिस। टेस्ट का नाम था एफ से शुरू, एन से खत्म, फिंकलस्टीन टेस्ट, प्रोवोकेटिव टेस्ट। चलिए इतना बता दिया आपको। अब बताइए इस बीमारी में ये टेस्ट पॉजिटिव आया है तो कौन से टेंडन्स इन्वॉल्व हैं, ए बी सी एंड डी। अच्छा, गोइंग विद बी, abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, abductor pollicis longus, extensor pollicis longus। एक्चुअली द टॉपिक है बेटा एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स का। द टू टेंडन्स प्रेजेंट मोस्ट लेटरली आर द लेटरल बॉर्डर्स ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। आंसर है इसका क्या, एनीवन? शिफाना इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर ए, अमन इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर ए, अशफाक गोइंग विद बी। आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। Abductor pollicis longus, extensor pollicis brevis, these two tendons they form the lateral border of anatomical snuff box। ये बीमारी इन्हीं दो टेंडन शीथ्स की है। शीथ आर कवरिंग ऑफ टेंडन। ईपीएल जो है ना बेटा, ईपीएल इट फॉर्म्स द मीडियल बॉर्डर, ओनली ईपीएल, वो एपीएल साथ में नहीं, ओनली ईपीएल इट फॉर्म्स द मीडियल बॉर्डर ऑफ एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। इट मे बी इन्वॉल्व बट नॉर्मली डज नॉट इन्वॉल्व। नॉर्मली ये पहले के दो, द लेटरल बॉर्डर्स, दोस टू टेंडन्स आर इन्वॉल्व। हाँ, टीनोसाइनोवाइटिस, इट इज बी इक्विवेलेंस टीनोसाइनोवाइटिस। टेस्ट का नाम बेटा फिंकलस्टीन टेस्ट, फिंकलस्टीन टेस्ट। प्रोवोकेटिव टेस्ट है, द पेशेंट विल शाउट ऑफ पेन। कोई पेशेंट आपके पास आए कि सर यहाँ पे दर्द हो रहा है, अंगूठा हिलाने में दर्द होता है, मैंने मुंह में थम ना ये दर्द होता है, उसका हाथ ऐसे लेकर ऐसे थोड़ा सा डेविएट करना, डू अ लिटिल बिट ऑफ अल्नर डेविएशन, उससे क्या होगा, दिस विल बी स्ट्रेच, जैसे स्ट्रेच होगा। इन्फ्लेमेशन है ऑलरेडी, अंदर आग लगी हुई है, इन्फ्लेमेशन इज व्हाट, रेड हॉट, पेन हो जाएगा बहुत, ये बहुत पेन हो रहा है, बस दैट इज क्लियर कट। ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, रेस्ट, सम पीपल में गिव स्टेरॉइड्स, रेस्ट एश्योरेंस है, इट में टेक फ्यू वीक्स फ्यू मंथ्स, नहीं हो पा रहा है देन सर्जरी, द लास्ट ऑफ सर्जरी। क्या करोगे, बस काट के यू हैव टू ओपन अप द शीथ कि बस स्ट्रेचिंग ना हो तो पेन नहीं होगा, सिंपल है। ओके, सो एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स, ओके, आइडेंटिफाई द बोन ओवर हियर, आइडेंटिफाई द एरो मार्क्ड बोन। दे आपका फुट है एंड देयर इज अ एरो व्हिच इज मार्किंग टुवर्ड्स दिस बोन। बताइए भाई कौन सी बोन है ये, व्हिच बोन इज दिस? इज इट टेलस, नेविकुलर है, क्यूबॉइड है, यूनिफॉर्म है? पहचानिए, कैसे पहचानेंगे? दो चीजें हैं, कार्पल टार्सल पहचाननी आनी चाहिए इन द एक्सरे, और नॉर्मली भी रखी हुई है, अगर एक इमेज दे दें या सिर्फ बोन्स की, बोन्स ऑफ फुट रख के इमेज दे दें एंड देन पुट एन एरो, कौन सी बोन है, एटलीस्ट यू शुड नो 7 टार्सल और 8 कार्पल, हाउ टू रिकॉग्नाइज देम। शोएब इज गोइंग विद इतना सारा बी, वेरी गुड। शोएब ने कम से कम नहीं तो 8-10 बी लिखे हैं, तो ऑब्वियसली बी पे ही जाते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। आंसर इज नेविकुलर, परफेक्ट, नेविकुलर है एकदम, दिस इज राइट फुट। समझो बातों को, दीज आर द phalanges, these are metatarsals, numbering has to be from the big toe, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा, 1 to 5 metatarsal। metatarsals articulate with the cuneiform and cuboid, so सबसे लेटरल में थी ये cuboid होगी, CUB, this one, these are cuneiforms, 1 2 3, medial, intermediate, lateral, 4 हो गई। ये नेविकुलर है। ऑन टॉप सिट्स द टेलस, टेलस का हेड ही जा रहा है बल्कि, ऑल टेलस। उसके नीचे आती है कैल्केनियम, यहाँ पर कैल्केनियम आएगी। लेट मी शो यू इमेज ओवर हेयर, आई गेस क्लियर हो जाना सब है। सेम मेटाटार्सल्स, phalanges में प्रॉक्सिमल, डिस्टल एंड मिडल, यूनिफॉर्म, क्यूबॉइड, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। नेविकुलर, टेलस, यहाँ कैल्केनियम आर्टिकुलर क्यूबॉइड, दिस इज कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट, एंड टेलस आर्टिकुलर नेविकुलर, तो ये बनाता है बॉल एंड सॉकेट वैरायटी ऑफ जॉइंट, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड कैल्केनियम क्यूबॉइड जॉइंट इज अ वैरायटी, इसको बोलते हैं बेटा सैडल वैरायटी, सैडल वैरायटी ऑफ साइनोइड जॉइंट। ठीक, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे, सिंपल नेविकुलर, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इफ दैट इज देयर, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही क्लिनिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच स्ट्रक्चर इज पैल्पेटेड इन द गिवन इमेज? यहाँ पर देखिए ये फुट है, there is this physician, उसकी उंगलियां यहाँ पर, they are palpating something, anterotibial, posteriotibial, plantar और dorsal spinatus artery, ये आना चाहिए सबको, ये सबको आना चाहिए। ये are palpating which artery, और all of you must have palpated this artery, करनी भी आनी चाहिए। बताइए क्या आंसर है इसमें?
बेटा विल दिस वीडियो बी अवेलेबल, मतलब अवेलेबल कहाँ चाहिए आपको अवेलेबल? ऑब्वियसली इट इज इन द यूट्यूब चैनल बेटा। आफ्टर लाइव कुछ मिनट में इट विल बी देयर इन द यूट्यूब चैनल, अनअकैडमी देसी डॉक्टर अब्रॉड यूट्यूब चैनल ना, ऑब्वियसली अवेलेबल होगा। बी सब बीवी पे जा रहे हैं, बी ही आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात, बी आंसर सब बी पे जा रहा था। आई वाज वरीड कि बी आंसर ही होना चाहिए। पोस्टेटिबल आर्टरी अ ब्रांच ऑफ पॉप्लिटेल आर्टरी, ठीक है, यहीं पर पैल्पेट करते हैं बिहाइंड मिडिल मेल्यूलस। ये मिडिल मेल्यूलस यहाँ पर होगा कहीं, इट इज बिहाइंड मिडिल मेल्यूलस। एंड फॉर दोज हु हैव नॉट येट पैल्पेटेड, पैल्पेट कर लो अपने पैरों में, should know to palpate few arteries, one of them is posterior artery over here. Dorsalis pedis आप यहाँ पर कहीं देखोगे between first and second metatarsals on the dorsum of the foot. Dorsalis pedis is the continuation of anterior tibial artery, ठीक है। पोस्टेटिबल ये है बेटा, फिर जाएगी फुट में, ये डिवाइड होगी मीडियल प्लांटर आर्टरीज में, एंड दे विल सप्लाई दी, दे विल फॉर्म द प्लांटर आर्टरी लार्ज। सो पोस्टेटिबल इंपॉर्टेंट है बहुत। एंड अगर ये पैल्पेट नहीं हो पा रही है, अब पेशेंट कह रहा है जी पैर में मेरे ठंड लगती है, मेरा पैर ठंडा रहता है और दर्द रहता है, दिस एंड दैट, ही कुड बी हैविंग पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, है ना, दे कैन बी इश्यूज, ये आनी चाहिए। यू ऑल शुड बी नो टू बी एबल टू पैल्पेट द few ऑफ द पेरिफेरल आर्टरीज, ठीक है। चलिए, हाँ जी। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, आई होप यू एंजॉयड। कोई और डाउट्स हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, कमेंट बॉक्स है, बाद में आराम से आप लिख लो। अगेन आई टेल यू, वो डाउनलोड दिया है, उसमें स्पेशल क्लास में जाइए, इन माय प्रोफाइल यू विल गेट अ लॉट ऑफ टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज। अनअकैडमी यूट्यूब चैनल नीट पीजी वाला, उसमें यू कैन हैव अ लुक एट ऑल द प्रीवियस वीडियोस। दिस वीडियो might be available only on the Unacademy देसी डॉक्टर अब्रॉड यूट्यूब चैनल, which is the associate channel of the Unacademy नीट पीजी वाला, तो they are siblings, ठीक है। So you can get a lot of things. कोई और डाउट है, जस्ट let me know in the comment box or post me in the various telegram groups या community part of the Unacademy app. Happy to help you over there. Lastly, all the best for your exam, and after the exam do let me know how well they went, what was the anatomy questions, कोई doubt हो, want to discuss anything, open, ठीक है, open over there. That's all. Thank you from my side, and all the best. Bye bye.